Welcome to MDC Learning, Standard TY BCom, Subject Indirect Tax. Hello learners, today we will talk about GST. Under that, we will focus on place of supply of service. So let's know about the introduction of place of supply of service along with the concept. So introduction is on your screen. Place of supply is nothing but the place where the goods are delivered or the service is consumed. In short, if I talk about it, it is a registered location of a recipient where the goods or the service is provided. It is of three parts which we had already discussed in our previous lecture. Place of supply of goods, place of supply of service, and place of supply in case of import and export. Place of supply, you can get the whole information of place of supply in section 10 to section 13 of IGST Act, that is Integrated Goods and Service Act 2017. Let's go further and see our today's content. Today's content will be completely based on place of supply of service. Before going further, I would like to talk about what is service. Goods. हम कपड़े खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ये सब चीजें हमारी गुड्स या प्रॉपर्टी हैं. बट व्हाट इज सर्विस? व्हेन द वर्ड कम्स सर्विस, इट मीन्स आप कॉलेज जाते हैं, वहां आपको पढ़ाया जाता है, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आपके कॉलेज में जो लोग हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको दवा दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एक सर्विस है. आप होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां आप खाना खाते हैं, आपको सर्विस दी जाती है, पानी दिया जाता है, आपको बैठने के लिए चेयर दी जाती है, वो सभी चीजें एक सर्विस है. ये जो सर्विस आपको दी जाती है, इसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छी तरह से डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. फॉर सच डिटर्मिनेशन वी विल सी आवर टुडेज वीडियो lecture. So place of supply of service within India is further divided into two parts, that is general rule and a specific rule. Let's go further and let's see a general rule first. Now on your screen you can see the general rule. First one is supply to registered or non-registered person, and second is other cases. When the word comes supply to registered or non-registered person, then the place of supply will be location of recipient. जो पर्सन उस सर्विस को रिसीव करता है, वो पर्सन को लोकेशन जो है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. सेकेंड है अदर केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर. You don't have in your syllabus other cases. So let's go further and focus specifically on specific situations. Students, specific situation is highly important. So we have to do a complete understanding of this part. Here, the first one is immovable property located in India or outside India. Then health and restaurant services. Then the training and performance appraisals. Fourth is admission to cultural, artistic, amusement park, etc. Then you have organizing of event on assigning of sponsorship to such events, for example ancillary services. Then you have passenger transportation services, and the last one is border convenience such as aircraft, vessels, trains, etc. Let's see this one by one. Under specific situation, these are the place of supply for each situations. First one is immovable property located in India or outside India. In such a situation, place of supply will be location of property. हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, हमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं, हमें दवाइयां देते हैं. अब इन सच ए सिचुएशन, जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी है, वो जिस स्पेसिफिक प्लेस पे होगी, वहां का ही लोकेशन या फिर वहां का ही जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. हाँ, हालांकि हेल्थ के लिए यानी हॉस्पिटल वगैरह के लिए हमारा सेकेंड पार्ट अप्लाई होता है.
सेकेंड पार्ट यही है दैट हेल्थ एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, दैट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। हम होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, चेयर्स होते हैं, वहाँ पे पानी के ग्लासेस होते हैं, पानी पीते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं, देन हमें खाना सर्व किया जाता है, वेटर हमें खाना सर्व करता है, हम खाना खाते हैं और घर पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक सर्विस हमें प्रोवाइड की गई, एसी होता है या फैन होता है, हमें एक सर्विस प्रोवाइड की गई है, सो इसे हम कहेंगे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। वो सर्विस हमें जहां पे दी गई है वो जगह हो जाएगी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लो मैं मुंबई में रहती हूँ, ऑफ कोर्स मुंबई में अगर मान लीजिए मैं कांदीवली में रहती हूँ, तो कांदीवली जो लोकेशन है मेरा, या बोरीवली या दहीसर या मीरा रोड, जो भी मेरा लोकेशन है, उस जगह से मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ तो मेरा घर का एक एड्रेस हुआ और उस रेस्टोरेंट का एक एड्रेस हुआ। तो अब यहाँ बात आती है कि कौन सा एड्रेस मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा अगर मुझे सर्विस दी गई है रेस्टोरेंट में। तो यहाँ ध्यान देना है कि आपको डिफरेंट एड्रेसेस दिए रहेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से जो एड्रेस आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में आपके एग्जाम में लिखना है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दो एड्रेस है, एक मेरे घर का एड्रेस है और एक मेरे उस जगह का एड्रेस है जहां पे मैंने खाना खाया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। खाना कहाँ दिया गया है? रेस्टोरेंट में, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होगा रेस्टोरेंट। अगर यही मैंने होम डिलीवरी मंगाई होती तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या हुआ? मेरा घर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरा घर, या मेरा घर जहां पे भी है वो प्लेस मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सर्विस रेस्टोरेंट सर्विसेज। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये भी वही बात है, जिस जगह पे आपको वो परफॉर्मेंस दिया गया है। आप कॉलेज पढ़ने जाते हो, यहाँ तक कि आपको घर पे ट्यूशन टीचर्स पढ़ाने आते हैं, आप कॉलेज पढ़ने जाते हो तो कॉलेज का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो कॉलेज में प्रोवाइड की गई है। देन यू हैव होम ट्यूशन। टीचर घर पे आते हैं और घर पे पढ़ा के जाते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई घर होगा, बिकॉज वो जो पढ़ाने का परफॉर्मेंस है वो घर पे किया गया है। नेक्स्ट वन इज एडमिशन टू कल्चरल आर्टिस्टिक अम्यूजमेंट पार्क। ऑफ कोर्स आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, आप संग्रीला जाते हो, आप डिफरेंट ऐसे पार्क्स में जाते हो जहां पे आपको वो सर्विस, वो अम्यूजमेंट पार्क या कल्चरल एक्टिविटी की सर्विस प्रोवाइड की गई है। परफॉर्मेंस जहां पे किया गया है वो प्लेस होगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केस है, इन तीनों ही केसेस में आप देख सकते हो कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट ऑन assigning of sponsorship to such event। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, इस केस में जिस जगह पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो जगह होगी मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लो कोई बहुत ही बड़ा कल्चरल प्रोग्राम इवेंट रखा गया है, जैसे कि आईफा या स्टार अवार्ड्स या जी अवार्ड्स, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो इसका जो लोकेशन होता है, जिस जगह पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो जगह मेरी बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब यहाँ क्या होता है कि जो मेरे पैसेंजर्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड होता है। आप जब ऑनलाइन अपना टिकट वगैरह बुक करते हो तो कभी कभी आपका एड्रेस लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता है। इन सच अ सिचुएशन जब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड केस में, और जब लोकेशन का रेसिपिएंट का टिकट लेने वाले का जब प्लेस या एड्रेस नहीं पता होता है तो पैसेंजर जिस स्टेशन से चढ़ता है वो स्टेशन ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। लास्ट वन इज बोर्डर कन्वीनियंस सच एज एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ अ डिपार्चर। ऐसे केसेस में जहां सर्विस आपकी कहीं पे चढ़ाई गई है, जब आप प्लेन से ट्रेवल करते हो तो जो एयर होस्टेस होती है वो आपको सर्विस देती है, आपको खाना देती है, आपको बार बार आके पूछती है कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो जिस प्लेस ऐसी जो सर्विसेज होती हैं डिफरेंट वो उन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लोकेशन ऑफ डिपार्चर ऑटोमेटिकली
कंसीडर हो जाता है. सो दीज ऑल वर द स्पेसिफिक सिचुएशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये आपको पढ़ना ही है, बहुत ही ईजी है फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. सो प्लीज this is an important part, you have to thoroughly understand it. So thank you student for attending today's lecture. I see you in next lecture. Please do a proper study